یہ ہے وقت میڈیا، پیش خدمت ہے رہبر ویلفیئر سوسائٹی گلاوٹی کا آل انڈیا بزم مشاعرے کا خاص ویڈیو۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصورت انسان جناب وریث قریشی صاحب۔ جناب وریث قریشی صاحب گلاوٹی اور اس کے اطراف میں جنتا کے کام آنے والے ایک سیاسی اور سماجی لیڈر ہیں۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے جناب ڈاکٹر گلزار قریشی صاحب۔ جناب ڈاکٹر گلزار قریشی صاحب ایک علمی اور ادبی شخصیت کے مالک ہیں جو گلاوٹی اور اس کے اطراف میں کئی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اور وہاں علم کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب حاجی عمران صاحب، بسپا کے لیڈر جو پربھاری ہیں ودھان سبھا سکندرآباد کے، جنہوں نے اس محفل کو اپنا قیمتی وقت دے کے رونق بخشی۔ اس مشاعرے کی صدارت کی جناب حاجی شبیل صاحب نے، جو زون کوارڈینیٹر ہیں بسپا میرٹھ زون۔ اس مشاعرے کے دوسرے کنوینر رہے جناب کمال مرتضی صاحب، سدسیہ ضلع پنچایت بلند شہر۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب حسنین دلکش صاحب نے۔ اس مشاعرے میں رہبر ویلفیئر سوسائٹی نے گلاوٹی کی علمی اور ادبی شخصیت جناب سراج قریشی صاحب کو ان کی اردو میں خدمات کے لیے ایوارڈ سے نوازا۔ جی ہاں، ڈاکٹر سراج قریشی صاحب کے 3 مجموعے کلام اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ صرف 30 سیکنڈ اور رک جائیے، آرگنائزر صاحب کی بات سن لیتے پھر دیکھتے ہیں مشاعرے کا ویڈیو۔ رہبر ویلفیئر سوسائٹی جس کے چیئرمین وریث قریشی ہیں، یہ آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہوا گلاوٹی میں، اور گلاوٹی کی تاریخ کا یہ ایک ایسا پہلا مشاعرہ رہا ہے جو رات 9:30 بجے سے سٹارٹ ہو کر صبح 4:30 بجے تک چلا، اور سامعین نے اس سے اتنا فیض اٹھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آل انڈیا مشاعرے ہم بہت جگہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اطراف میں اور جگہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک تاریخ یہ رہی کہ کسی بھی شاعر کو کسی ہوٹ نہیں کیا گیا، ہر شاعر کو بڑے سلیقے سے سنا گیا۔ زمانہ بڑا شاطر ہے، یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے، کیا کہنے ہیں، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے، کیا کہنے ہیں، یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے، اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو، پہلے عورت کو ایک ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے۔ ارے واہ 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 واہ، کیا شعر پڑھ دیا بھائی، واہ 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 واہ۔ تو یہ ہیں جناب وسیم راجو پوری صاحب۔ گلاوٹی کے اس مشاعرے میں آپ نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو تالیاں بجانے پر اور داد دینے پر مجبور کر دیا۔ اچھے اور سچے شعر کہنے والے اس خوبصورت شاعر نے صرف 9 منٹ اپنا کلام سنایا، کیونکہ شعراء کی لمبی فہرست تھی، لیکن اس 9 منٹ میں انہوں نے اپنے شعر اور اپنی نظم سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اس شاعری میں زندگی کے بہت سے مسئلے اور ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ میں روڑکی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے جناب وسیم راجو پوری ہندوستان نہیں پوری دنیا کی مقبول ترین شخصیت کو آواز دے رہا ہوں۔ یہ 4 مصرے پڑھ کر کے بجھتے ہوئے چراغوں کی چاہت نہیں مجھے، بجھتے ہوئے چراغوں کی چاہت نہیں مجھے، سورج ہوں روشنی کی ضرورت نہیں مجھے، سر کو جھکا کے جاؤں میں قاتل کے سامنے، اب اس قدر بھی شوق شہادت نہیں مجھے۔ استقبال کیجئے جناب وسیم راجو پوری صاحب کا، زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے۔ پوری دنیا کی مقبول ترین شخصیت، اور میں ذاتی طور پر ان کے شاعرانہ صلاحیت کو اور ان کے اخلاق حسنہ کو بے انتہا پسند کرتا ہوں، جناب وسیم راجو پوری صاحب۔ دوستو آپ وہی استقبال کیجئے جس طرح سے آپ نے جناب علی بارہ مکی کا کیا تھا، زوردار تالیوں سے استقبال کیا۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیا خوبصورت مشاعرہ آپ نے بنایا ہے۔ علی بارہ بنکی نے بہت خوبصورت شاعری سنائی، آپ نے بھرپور محبتوں سے اور دعاؤں سے نوازا۔ میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار آپ کی خدمت میں، آپ کا بہت چھوٹا سا شاعر ہوں، چاہتا ہوں کہ چند اشعار آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں جو مجھے پسند ہے۔ میں دراصل شاعری جو ہے حضرات 2 قسم کی شاعری ہوتی ہے، ایک مشاعروں کی شاعری ہوتی ہے اور ایک اپنے شوق کی شاعری ہوتی ہے۔ تو حضرات میں اپنے شوق کے لیے شاعری کرتا ہوں اور وہ میں عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ کہ جہاں جہاں بھی میرا کوئی شعر، کوئی مصرع، کوئی لفظ آپ کو پسند آ جائے
तो आप अपनी भरपूर मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से मुझे नवाजिएगा। जी इरशाद। जी मैं हाजिर करता हूँ, आज करता हूँ। देखिए थोड़ा सा टाइप से भी तवज्जो चाहता हूँ। और मेरे भाई देखिए आप कहीं जा रहे हैं, जल्दी से निकल जाइए। आज करता हूँ, देखिए मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज करता हूँ कि हजारों कोशिशें करके भी गुर्बत हार जाती है। हजारों कोशिशें करके भी गुर्बत हार जाती है। यहाँ पर रिश्वतें चलती हैं, मेहनत हार जाती है। भाई क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे लगा कि शायद मतला अच्छा था, लेकिन आप तक पहुंचा भी, आपने मुझे दुआएं दी लेकिन कम दी। मैं पेश करता हूं। आज मैं एक और अर्ज कर दूं कि मैं आपको सिर्फ शायरी सुनाऊंगा, कोई सियासत की बात नहीं करूंगा, कोई जुल्फ रुखसार की बात नहीं करूंगा। वो शायरी सुनाऊंगा जो आप अपने घर जाकर अपने वालिदैन को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सुना सके। आज करता हूं कि हजारों कोशिशें करके भी गुर्बत हार जाती है। यहाँ पर रिश्वतें चलती हैं, मेहनत हार जाती है। हवाएं किसकी चलती हैं, ये बारिश कौन करता है? हवाएं किसकी चलती हैं, ये बारिश कौन करता है? अगर हम सोचने बैठे तो हैरत हार जाती है। अरे क्या कहते हैं, बहुत सलीके से शेर कहते हैं। ये बारिश कौन करता है? अगर हम सोचने बैठे तो हैरत हार जाती है। और ये मतला और ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये जमाना बड़ा शातिर है। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। क्या कहने हैं, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। क्या कहने हैं, ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू। पहले औरत को एक डर था, कोई सर देख। अरे क्या शेर पढ़ दिया भाई, क्या पाकीज़ा शेर पढ़ दिया है। जी मैं हाजिर करता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी मैं हाजिर करता हूँ। जी भाई शुक्रिया। आज करता हूं कि ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू। पहले औरत को ये डर था, कोई सर देख न ले। क्या कहने हैं, और ये मतला और ये शेर भी आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। दरअसल मुझे हुक्म हुआ एक नज्म के लिए, मैं थोड़ा सा उसका प्लाट बनाना चाहता हूँ, थोड़ा माहौल बनाना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब अल्ताफ जिया साहब मेरे मोहसिन यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं एक मतला एक शेर पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला। दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर। दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला। सारी दुनिया से जुदा मेरा मुकद्दर निकला। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला। सारी दुनिया से जुदा मेरा मुकद्दर निकला। और लाख गुर्बत रही, किरदार का सौदा न किया। घर से निकला तो सदा सर को उठा कर निकला। क्या कहने हैं भाई, लाख गुर्बत रही, किरदार का सौदा न किया। घर से निकला तो सदा सर को उठाकर निकला। और ये भी मुलाहिजा फरमाए कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। वाह 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 वाह। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। और एक एक शख्स की नजर करता हूं ये शेर, तमाम मजमे की नजर, कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर क्या कहने हैं, तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पर रखा है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तू चाहता भाई वाह वाह वाह। तो दिलों में भी सबके रहता, मगर साहब वाह वाह वाह। तेरी जबान ने तुझको सड़क पर रखा है। वो नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। उससे मतलब एक शायद किसी हवाले से आप हजरात तक मेरा पहुंचा हो।
उस मतले को पढ़ना जरूरी समझता हूं। अर्ज करता हूं कि दिल का आंगन भीगा भीगा, आंख के आंसू सूखे हैं। क्या कहने हैं। दिल का आंगन भीगा भीगा, आंख के आंसू सूखे हैं। आज तो अल्लाह काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी मुख्तसर सी एक नज़्म है जिसका उन्वान है सब्र, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछिए बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दिन ये ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहमो करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तिहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तिहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने भाई, वाह 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 जी, क्या सच्ची शायरी है भाई वसीम साहब, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। फिर से अता करें ये बात। जी जी, मैं हाजिर करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछिए बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दिन ये ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहमो करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तिहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तिहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। वाह वाह वाह। अब ये दूसरा पहलू नज़्म का मुलाहिजा फरमाए कि वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना। और कहना के हक में मरते हैं, हम हुसैनी हैं सब्र करते हैं। वाह 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 वाह। और कहना के हक में मरते हैं, हम हुसैनी हैं सब्र करते हैं। वाह वाह वाह। सुन के वालिद की बात वो बोला, सब्र दे मुझको ऐ मेरे मौला। शुक्र हर पल अदा करूंगा मैं, अब ना हरगिज गिला करूंगा मैं। क्या कहते हैं। मुफलिसी से ही आओ प्यार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार। आप थे जनाब वसीम राजोपुरी। दोस्तों, जो हालात हाजरा को अपनी शायरी बना रहे थे। दोस्तों, मैं जितनी मुबारकबाद मुंतजिमा कमेटी को पेश कर रहा हूँ, आप यकीन मानना कि इस मुशायरे की तारीख जब भी मुअर्रिख मुरतब करेगा तो उस तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों में जो नाम होगा वो आप तमाम हजरात का होगा, क्योंकि जितनी सलाहियतें शोरा इकराम ने अपना कलाम पेश करने में लुटाई है, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बतें आप तमाम हजरात ने इन शोरा पर लुटाई। आपका बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, जनाब डॉक्टर गुलजार साहब और गुलावटी के इस ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। दोस्तों, कोई शायरा मुशायरा पढ़कर रुखसत होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे नौजवान दोस्तों की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन मैं एक इस्लाह आपकी करना चाहता हूँ कि तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले, ये मासूम चेहरे भी देते हैं धोखा, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, आप तमाम हजरात यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ लाए। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गुलावटी में, और ये हैं जनाब वरीस कुरैशी साहब और उनके हमनवा डॉक्टर साहब, जिन्होंने एक खूबसूरत मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा
آپ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، گلاوٹی، بلند شہر سے.